Hello everyone, I am Shuchismita and today I am back with another very important work by Balbir Madhupuri that is Changia Rukh. ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो लास्ट 2 years में आए हैं. एक 2019 में भी आया था और ये 2021 अगस्त वाले एग्ज़ाम में भी आया है. सो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू काइंडली कंसिडर दिस एज वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. और ये जो बुक है, this highlights the sufferings and struggle of a Dalit community in the state of Punjab. Now, before going into in-depth analysis of the book, let me first give you a brief overview कि ये जो book है by Balbir Madhupuri, that is Balbir Madhupuri's Changia Rukh, this is the first Punjabi Dalit autobiography which was translated into English. Now, this entire story is the story of a Dalit's anger, deprivation, social exclusion and humiliation. Balbir Madhupuri जो थे writer, he was born in the year 1955 in the Adh-Dharmi caste, which is a category of the Chamar caste of untouchables. He is a Punjabi poet and इनके दो अलग important collections of poems हैं. One, Maruthal, the Bark, that is the tree of the desert, 1998, and Bhakhara Patal, the smoldering netherworlds, 1992. Now, Changia Rukh का मतलब क्या होता है? Changia Rukh means a tree which is lopped from the top, which is slashed from the top. And the writer has used Changia Rukh as a metaphor for the Dalit Indian, whose potential for growth has also been marred by the Hindu social order. Changia Rukh का मतलब जो होता है वो है ट्री विच इज स्लैश्ड, विच इज कट फ्रॉम द टॉप. और जिस तरह से ट्रीज को टॉप से कट करने के बाद जिनकी ग्रोथ अफेक्ट हो जाती है, रुक जाती है, उसी तरह से यहाँ पे राइटर ने चांगिया रुख को एज अ मेटाफोर यूज़ किया है दलित इंडियंस के लिए, जिनकी ग्रोथ की पोटेंशियल भी रुइन हो जाती है, अफेक्टेड हो जाती है, काट दी जाती हैं बाय हिंदू सोशल ऑर्डर. और लास्ट में आप देखेंगे यहाँ पे जो बलबीर माधवपुरी है वो बात कर रहे होते हैं एजुकेशन की, विच अकॉर्डिंग टू हिम इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर टू ब्रिंग अ चेंज इन अ दलित्स लाइफ. एक एजुकेशन के माध्यम से ही, के मीडियम से ही दलित्स के लाइफ में, उनके स्टेटस में, लोगों के पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स दलित में, सब में चेंज लाया जा सकता है. तो आइए अब हम इस बुक की डीप और इन डेप्थ एनालिसिस को देखते हैं कि यहाँ पे बलबीर माधवपुरी ने क्या बोलना चाहा है इस बुक में, विच इज़ हिज फर्स्ट दलित पंजाबी ऑटोबायोग्राफी. So now coming to the in-depth analysis of this book by Balbir Madhupuri. Now let's understand what this book talks about. So this Changia Rukh is a story of Dalits deprivation, social exclusion and humiliation. और इसमें ये भी highlight किया गया है कि क्या उनका resistance, achievement और hope रहा है from wider society. So this book was written in the year 2010 and it is a story of deprivation. Deprivation of whom? Of Dalits. We have seen that B.R. Ambedkar और महात्मा गांधी ने दलित्स के लिए बहुत कुछ काम किया था. Like for example, they talked about the abolition of untouchability, या फिर they wanted to reform और improve the lives of the Dalits. बहुत सारी एरियाज़ में काम हुए हैं और इसी एरिया को आगे बढ़ाते हुए इस बुक में बलबीर माधवपुरी ने भी उनके कंडीशन को हाईलाइट किया है. सो इट इज़ this book Changia Rukh, it is a wonderful work by Balbir Madhupuri that talks about how the identity, how the growth of Dalits have been marred, have been cut, have been adversely affected by the wider Hindu society. So इसका मतलब क्या है? मैंने बताया था पहले भी कि चांगिया रुख का मतलब होता है a tree which is lopped from the top. So this title of Balbir Madhupuri's autobiography is very very significant. और मैंने बता रखा है कि चांगिया रुख का जो इंग्लिश वर्जन है वो अगेंस्ट द नाइट. इट मीन्स अ ट्री लॉप्ड फ्रॉम द टॉप, स्लैश्ड और डॉफ्ड. एंड इट हैज़ बीन यूज्ड एज अ मेटाफॉर फॉर द दलित्स और एन अनटचेबल इंडियन. सो यहाँ पे जो बात हो रही है दलित्स की, यहाँ पे दलित्स
कम्युनिटी की बात हो रही है इन पंजाब। तो ये जो माधोपुर प्लेस है ये एक विलेज है पंजाब में, और यहाँ पे ही यहाँ के दलित्स के बारे में ऑटोबायोग्राफी है ये बुक। चांग्या रुक जो है ये ट्रेस करता है सोशल हिस्ट्री ऑफ दलित्स कम्युनिटी इन पंजाब and brings out the caste relations constructed on prejudice and inequality. This book talks about bleakness of life, कि उनकी लाइफ कितनी होपलेस है, कुछ भी उनके लाइफ में होप नहीं रहा है दलित्स के लिए, because the way they have been exploited, the way they have been the way they have been suffering all these while, वो बहुत ही एक होपलेस कंडीशन में है। इतना कॉन्स्टिट्यूशनल और लेजिस्लेटिव मेजर्स लेने के बावजूद भी दे do not have much hope from wider society. It's ironical in nature because एक तरफ दिखा रहे हैं कि उनको कंडीशन इतना बुरा है कि वो कुछ होप नहीं कर सकते, लेकिन एट द सेम टाइम उनकी एक एक्सपेक्टेशन बनी हुई है। ये एक आयरॉनिकल स्टेटमेंट है बिकॉज उनकी एक्सपेक्टेशन बनी हुई है कि शायद कुछ अच्छा हो सकता है। This entire book talks about the caste-based discrimination. और यहाँ पे बात कर रहे हैं बलबीर माधवपुरी की, जो कास्ट होता है रेस की तरह बर्थ से डिटरमिन होता है, और ऐसा नहीं है कि डेथ होते ही कास्ट का भी वो ख़त्म हो जाता है, बट ये पास होता है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। और बहुत लोग इन थ्योरी ऐसा भी होते हैं जो कास्ट की इस एक्सप्लॉयटेशन से या कास्ट का जो एक स्टिग्मा है वो उनसे भागने के लिए अपना रिलीजन चेंज करते हैं, लेकिन प्रैक्टिस वी ऑल्सो नो कि जो कास्ट है फॉलोज एवरीवेयर, wherever whichever religion you get converted to, it will follow us, it will always follow everyone. आप कितना भी कास्ट चेंज करें, लेकिन कास्ट का जो धब्बा है, स्टिग्मा है, अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी वो कभी पीछा नहीं छोड़ता है। सो इट इज़ अ पार्ट ऑफ अस इवन आफ्टर आवर डेथ। सो यहाँ पे भी आप देखेंगे कि इसमें बहुत ही अनइमेजिनेबल हॉरिफिक स्ट्रगल है दलित्स का, और every day they have to face lots of exploitation at every phase of life. मतलब उनको बहुत हर फेज में हर दिन कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में एक्सप्लॉयटेशन फेस और सफ़र करना ही पड़ता है। माधवपुरी ने अपने वर्ड्स में खुद डिस्क्राइब किया है कि many a time I am dwarfed like a tree, cut at the top, over whom passes the power line. I get pruned out of season when in passing someone is curious to know what my caste is. So क्रक्स जो यहाँ बोलने का ये मतलब है कि सिर्फ उनको नहीं, बट वो हर इंसान जो कि दलित कम्युनिटी को बिलोंग करता है उसको ऐसे ही सफ़र करना पड़ता है जैसे कि एक ट्री को ऊपर से काट दिया गया हो। सेम एक्सपीरियंस वो लोग भी करते हैं कि जिस तरह से एक ट्री को ऊपर से काट दिया जाता है, सिमिलरली उन लोग की ग्रोथ, उन लोग की आइडेंटिटी को भी उन लोग को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो ये जो चांग्या रुक है, इट इज़ अ पावरफुल टेस्टिमनी टू द सफरिंग्स ऑफ मेन एंड वुमेन ऑफ चमार कम्युनिटी। दलित कम्युनिटी ऑफ चमार है पंजाब में। इस कम्युनिटी के लोग, मेन एंड वुमेन की सफरिंग्स को यहाँ पे हाईलाइट किया गया है। और यहाँ पे इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू पॉइंट आउट कि इट इज़ अ लाइवली क्रॉनिकल ऑफ अ होस्ट ऑफ पीपल, each significant and memorable, not as a representative of a caste in one part of the country but as an individual. यहाँ पर सिर्फ कास्ट के बारे में, कास्ट के बेसिस पे नहीं, बट एज एन इंडिविजुअल भी उन्हें हर स्टेप पे उनको एक्सप्लॉयटेशन और सफरिंग को एक्सपीरियंस करना पड़ता है। यहाँ बुक में बात हुई है एक बॉय के बारे में, सेंसिटिव बॉय। एक बॉय है हु इज़ प्लांटिंग अ मैंगो सैपलिंग, जो उसने बहुत ही मेहनत से लिया था और वो प्लांट करने चला था मैंगो सैपलिंग को, लेकिन तुरंत में उस मैंगो सैपलिंग को उसके फादर स्नैच कर लेते हैं और बताते हैं कि नहीं, तुम्हें कोई हक नहीं है मैंगो सैपलिंग को प्लांट करने का, बिकॉज यू शुड नॉट ट्राई टू कॉपी अपर कास्ट जाट्स। सो इट इज़ नॉट यू हु हैव टू डू दिस, इट्स समथिंग विच कैन बी डन ओनली बाय अपर कास्ट पीपल। तो तुम ये चीज़ नहीं कर सकते हो। बट बॉय इज़ टू स्मॉल टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ अ कास्ट और डिफाइलमेंट, लेकिन उसके पास कोई और चारा नहीं होता है, बट बेटर है कि वो खुद समझ ले इस चीज़ को, या एक्सेप्ट कर ले, नहीं तो फिर उसको और भी ह्यूमिलिएशन सफ़र करना पड़ेगा।
तो ये एक एग्जाम्पल है जहाँ पे बच्चे को जो सैपलिंग प्लांट करने जाता है मैंगो का, उसको उसके फादर के थ्रू कितना उसको सहना पड़ता है। उसको समझ में नहीं आ रहा फादर क्या कहना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि तुम्हें अपर कास्ट जात को फॉलो नहीं करना है, लेकिन बच्चा समझ नहीं पाता है कि ये क्या है अपर कास्ट, बट फिर भी धीरे धीरे उस चीज़ को समझ जाता है और वो एक्सेप्ट कर लेता है। फिर यहाँ पे बात हुई है दलित ग्रैंड मदर की भी, जिसको दादी हारो कहते हैं, और वो ज़्यादातर देखा गया है इस बुक में कि जहाँ पे वो रिब्यूक कर रही है, मजाक उड़ा रही है जाट विमेन को, तो यहाँ पे वो भी चीज़ देखा गया है। स्पेशली जब जाते हैं स्विंग करने के लिए वहाँ पे औरतें, तो वहाँ पे दादी जो होती है, दलित ग्रैंड मदर है, वो उन जाट वुमेन लोग को बहुत ही गंदे से रिब्यूक करती है। फिर उसके बाद यहाँ पे फादर का बात किया गया है। जो फादर है भैया हैं, जो मैंने पहले बताया था कि वो बहुत ही ऑप्रेस्ड फादर का रोल यहाँ पे करते हैं, जहाँ पे रोल क्या मतलब उनका जो बना हुआ है फिगर बहुत ही ऑप्रेस्ड वाला है, जो कि हमेशा मतलब ज़्यादातर अपने बच्चों को मार पीट के समझा के मतलब बता के रिजेक्ट वो करते हैं कि नहीं, तुम्हें अपर कास्ट को नहीं फॉलो करना है। एंड ही ऑफन एंड्स अप थ्रैशिंग हिज सन्स, ताकि वो लोग अपने अपर कास्ट लोग को कॉपी ना करें। पर यहाँ जो फिगर है मदर, बुआ और जो अदर वुमेन जो हैं यहाँ पे, वो लोग बहुत डाउन टू अर्थ है। दे एक्सेप्ट देयर सो कॉल्ड फेट बट फाइंड वेज ऑफ डीलिंग विद इट विद करेज, डिटर्मिनेशन। तो यहाँ पे जो देखा गया है, दादी है बहुत स्ट्रांग है, और वो जितनी भी जाट वुमेन हैं उनको बहुत ही रिब्यूक करती है, उनको बहुत ही मतलब कंप्लेनिंग वे में उनको बहुत ही मजाक भी उड़ाती हैं, बिकॉज ऑब्वियसली शी इज़ फ्रॉम मतलब लोअर कास्ट एज पर द पर्सपेक्टिव ऑफ सोसाइटी। तो उनको लगता है कि अपर कास्ट जात है, तो उनको अपना एक कॉम्प्लेक्स तो है ही, लेकिन साथ ही साथ वो जाट वुमेन को भी बहुत ज़्यादा रिब्यूक करती है। फिर फादर को देखा गया कि हमेशा वो अपने बच्चों को मारते पीटते हैं, लेकिन जो वुमेन है यहाँ पे, वुमेन कम्युनिटी है, बुआ है, अदर वुमेन है, वो लोग बहुत डाउन टू अर्थ है। दे हैव एक्सेप्टेड देयर फेट, कि उनका फेट यही है, उन्होंने अपने आप को इस फेट से मतलब इसको एक्सेप्ट कर लिया है, और डील बिल्कुल विद करेज एंड डिटर्मिनेशन के साथ डील करते हैं इस कंप्लीट लाइफ को। उनको पता है उनकी लाइफ यही है, ज़्यादा कुछ चेंज नहीं कर सकते, उन्होंने अपना एक्सेप्ट फेट कर लिया है। और जहाँ भी और से वुमेन होती हैं, मदर्स होती हैं, सबसे एक तरह ही पेश आती हैं। और यहाँ पे दिखा गया है कि मदर जो है, जो बुआ है, काफ़ी मतलब प्रैक्टिकल सोचती हैं और उन्होंने अपना फेट एक्सेप्ट कर लिया है। इनको बहुत एग्रेसिव नहीं दिखाया गया है यहाँ पे, बट हाँ फादर को बहुत ही एग्रेसिव दिखाया गया है। ग्रैंड मदर इज़ ऑल्सो वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, जो रिब्यूक करते हैं हर समय जाट वुमेन को। जब स्विंगिंग करने गए, झूला झूलने गए, वहाँ पे अगर जाट वुमेन है उनको रिब्यूक करती हैं। तो इस तरह देखा गया यहाँ पे। और यहाँ पे और सब कैरेक्टर्स भी हैं बहुत सारे, जिनका बिल्कुल डिफरेंट सा ट्रेट है। फिर ये इस बुक में बात की गई है रूरल पॉवर्टी के बारे में, जो बलबीर माधवपुरी डिस्क्राइब करते हैं कि यहाँ जो है रूरल पॉवर्टी और हंगर है। और यहाँ पे बात किया गया है टी वर्सेस मिल्क। यहाँ पे उन्होंने हाईलाइट किया है कैसे टी को इन्फीरियर माना जाता है। जो लोअर कास्ट है वो लोग चाय पीते हैं, लेकिन हाँ जो सुपीरियर कास्ट है वो लोग मिल्क पीते हैं। तो यहाँ पे इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा हाईलाइट किया गया है। और उसके बाद बात होती है इनर टर्मोइल के बारे में, जहाँ पे यहाँ पे बलबीर माधवपुरी को अपना लास्ट नेम ड्रॉप करना पड़ता है ओरिजिनल, और ही टेक्स अप द नेम ऑफ द प्लेस ऑफ द विलेज, दैट इज़ माधोपुर, को अपना माधोपुरी बुलाते हैं, ताकि वो चीज़ जो है कास्ट का चीज़, वो स्टिग्मा जो है उससे उनको थोड़ा उतना सहना ना पड़े, ताकि जो कास्ट का स्टिग्मा है, बिकॉज अगर वो अपना ओरिजिनल नेम यूज़ करेंगे तो सबको चल जाएगा पता कि हाँ ये दलित कास्ट को बिलोंग करता है। इसलिए उन्होंने क्या किया कि यहाँ पे अपना सरनेम ड्रॉप किया और अपने बर्थ प्लेस माधोपुर का नेम एज अ सरनेम यूज़ कर लिया, इसलिए नाम उनका पड़ा बलबीर माधोपुरी। तो यहाँ देख सकते हैं कैसे वो अपना कास्ट आइडेंटिटी को कंसील करते हैं और कैसे वो पूरा रिजेक्ट करते हैं एंटायर हिस्ट्री ऑफ ऑपरेशन को। तो हियर कुछ तरीक़ों से ही इज़ ट्राइंग टू कंसील हिज आइडेंटिटी, कास्ट आइडेंटिटी।
फिर यहाँ बात क्या है कैसे एक बार दिल्ली में शिफ्ट करना था उनको, अपने फैमिली के साथ मूव करना था दिल्ली में अपने फैमिली के साथ, वहाँ पे भी उनको बहुत डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ा था, बिकॉज जब वो रेंट पे लेने गए घर तो कोई भी हिंदू, अपर कास्ट हिंदू वॉज नॉट विलिंग टू गिव हाउस टू हिम, बिकॉज दे डाउटेड, वो जो अपर कास्ट हिंदूज हैं उनको लगा कहीं ऐसा तो नहीं कि ये दलित है, तो उनको ये सस्पेशन था, हिंदूज जो अपर कास्ट हिंदूज थे दिल्ली में उनको ये सस्पेशन था, कहीं ना कहीं सस्पेक्ट कर रहे थे कहीं ये जो बलबीर माधोपुरी कहीं दलित तो नहीं बिलोंग करते हैं, इसलिए उनको वहाँ भी स्ट्रगल फेस करना पड़ा था। फिर आपने देखा होगा इस पूरे जॉनर जो है ऑटोबायोग्राफीज दलित का, इसमें यहाँ पे माधोपुरी ने अपना एक लिव्ड एक्सपीरियंस को हाईलाइट किया है। यहाँ पे जो पूरा ऑटोबायोग्राफी है दलित का, इसमें उनका क्या क्या सफरिंग्स होता है, कितने स्ट्रगल्स होते हैं, इनको हाईलाइट किया गया है। दो इम्पॉर्टेंट मतलब बहुत सारे इम्पॉर्टेंट वर्क किए गए हैं इस एरिया में। एक था जूठन, ओम प्रकाश वाल्मीकि का, वो भी बिल्कुल डील करते हैं भांगीज ऑफ फ्रॉम उत्तर प्रदेश। फिर ऐसे और सभी ऑटोबायोग्राफीज बहुत सारे लिखे गए हैं जो कि सफरिंग्स, एक्सप्लॉयटेशंस और जितने भी एक्सपीरियंस है, बिल्कुल हार्श ट्रीटमेंट जैसे उनको किया जाता है दलित्स को, वो सबको पोर्ट्रे किया गया है। एंड देन दिस इज द इफेक्ट ऑफ फर्स्ट पर्सन स्टोरीज। तो ये सब जितने भी हैं इसमें जो हाईलाइट किए गए हैं इंसिडेंट्स, वो सब फर्स्ट पर्सन स्टोरीज हैं विच टॉक्स अबाउट देयर एंगर, विच एक्सप्रेसेस देयर एंगर, and they are also experiencing and they are also showing or expressing their pain and discrimination which they have to follow every now and then. तो चंगिया रुख जो है ये बुक जो है डिस्क्राइब करता है दलित्स के सफरिंग्स को। इट ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स इंडियन सोसाइटी, कस्टम्स, सोशल ऑर्डर। और यहाँ पे देखेंगे कि आप यहाँ पे जो लैंग्वेज है, लिटरेरी स्किल्स है, यहाँ पे जो भी लैंग्वेज है ये सब बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में यूज़ किया गया है इस पूरे बुक में, which can be easily understood by any person. फिर यहाँ बात की गई है कि ग्लोबलाइजेशन जो होता है वो इकोनॉमिक सिचुएशन को ही अफेक्ट करता है, ना कि एक सोशल फ्रंट पे। सोशल फ्रंट को नहीं करता, बस इकोनॉमिक सिचुएशन को ही करता है। इसलिए कितना भी कुछ हो जाए, ग्लोबलाइजेशन कितना भी आपका एडवांसमेंट हो जाए, लेकिन वो किसी भी कास्ट या कम्युनिटी के सोशल इमेज को वो लोग उस पर फोकस नहीं करते ग्लोबलाइजेशन, वो सिर्फ इकोनॉमिक फाइनेंशियल एस्पेक्ट पे ही फोकस करते हैं। तो देखा होगा हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि फोकस जो होता है दलित लिटरेचर का, सिर्फ ऑटोबायोग्राफी का नहीं, बहुत सारे लिटरेचर्स लिखे गए हैं दलित के ऊपर, वो सब जो फोकस करते हैं, इट ऑलवेज फोकसेस ऑन द रिवोल्ट एंड नेगेटिविज्म। एट द सेम टाइम देयर इज ऑल्सो होप फॉर फ्रीडम ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल हु as untouchables are unfortunate bunches. So वो जो एक ग्रुप ऑफ पीपल है जिनको एज अनटचेबल रेफर किया गया है, उनके होप्स ऑफ फ्रीडम को भी पोर्ट्रे किया गया है। सो यहाँ पे देखा जाएगा कि दलित का जो है लिटरेचर, दलित की जो ऑटोबायोग्राफी है, सब जगह एक चीज़ जो कॉमन है वो है दलित की एक्सपीरियंस, पेनफुल एक्सपीरियंस, स्ट्रगल, सफरिंग। सो ये सब चीज़ों को बहुत ही अच्छे से हाईलाइट किया गया है, और ये इसलिए हाईलाइट किया गया है ताकि लोग जानें कि उनकी लाइफ में उनको कितना सफ़र करना पड़ता है। हर स्टेज पे एक्सप्लॉयटेशन है, सफरिंग है, ह्यूमिलिएशन है, डेप्रिवेशन है, इतनी डिस्क्रिमिनेशन है, प्रेजुडिस है। एट द सेम टाइम इट इज़ ऑल्सो रिटन वाई टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ इंटरनेशनल जो होते हैं, इंटरनेशनल अटेंशन का भी, ताकि उनको अटेंशन मिल सके इंटरनेशनल सोर्सेज से। सो ये सारी जो टेस्टिमनी है, सफरिंग्स है, इट इज़ नॉट मियरली रिकॉर्ड ऑफ सब्जेक्टिव परसेप्शन, इट बट ऑल्सो ओपन्स अ विंडो टू द ऑब्जेक्टिव कंडीशन that existed in the past, as well as the social relations that have been changing after India's independence. The new generation of Dalits now have learned to confront injustice with reason and with a sense of confidence. बहुत injustice उन्होंने सहा इन पास्ट, लेकिन धीरे धीरे वो लोग भी एजुकेशन के थ्रू वो लोग भी एक अवेयर सिटीजन हो रहे हैं। उनको पता है कैसे इनजस्टिस को कन्फ्रंट करना है, टैकल करना है, ओवरकम करना है यूजिंग रीजन, रैशनैलिटी एंड कॉन्फिडेंस। सो एक चीज़ यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो बलबीर माधोपुरी ने बात किया है, वो है एजुकेशन।
वो कहते हैं द की टू चेंज इज़ ओनली एजुकेशन। और इसलिए आज जो भी थोड़े बहुत लोग, दलित स्पेशली, जो कि लर्न कर रहे हैं कैसे कन्फ्रंट करना है जस्टिस को, कैसे वो अवेयर हो रहे हैं, कैसे एक अवेयर सिटीजन है, इन्फॉर्म्ड सिटीजन है, वो बस एक एजुकेशन के थ्रू ही हो रहा है। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट education must be imparted, must be given to everyone. Our Dalits must be educated so that they can be a more responsible and aware citizen. So Madhupuri wants Dalits to raise their status by their individual effort, but at the same time suspects that an individualistic mobility syndrome negatively impacts their desired collective struggle for justice and dignity. So ये था आपका पूरा in-depth analysis of the book Changya Rukh by Balbir Madhupuri. I hope it was useful to everyone. और अगर आप कुछ फीडबैक देना चाहें या अपना कुछ व्यू पॉइंट शेयर करना चाहें तो आप प्लीज़ मुझे ईमेल कर सकते हैं at shuchi.joyoflearning@gmail.com. Thank you so much.